اللہ حفاظت فرمائے. آج کئی نوجوان بچے سورہ فاتحہ سے محروم ہیں, پڑھنے نہیں آتا ہے سورہ فاتحہ, نماز کا طریقہ نہیں, باپ کا جنازہ ہے, جنازے کی نماز کی دعا نہیں آتی ہے نوجوان کو, 100 گانے سنا دیتے ہیں, ڈانس کر دیتے ہیں اینول ڈیز میں, اسکول ڈیز میں, لیکن نماز کا طریقہ نہیں, جنازے کی نماز نہیں, باپ کی نماز, جنازہ پڑھنا نہیں آ رہا ہے. کیوں؟ پیرنٹنگ بھول گئے. پیرنٹس اتنے مشغول ہو گئے, ماں بھی ٹی وی میں, باپ بھی ٹی وی میں, سب لوگ فونز میں لگے ہیں. گوگل آپ کو راستے ایک شہر سے دوسرے شہر ضرور لے جائیں گے, لیکن قرآن کو پکڑ لیں وہ جنت لے جائیں گے انشاءاللہ. اور آج گوگل کے دیوانوں, یوٹیوب کے دیوانوں, انسٹاگرام کے دیوانوں, آپ کو کچھ نہیں ملے گا. کچھ پل کا آپ کو ضرور مزہ ملے گا, لیکن آخرت میں اس کی سزا ہی سزا ملنے والی ہے. آپ کو دیکھ کر آپ کے رشتہ داروں کا ایمان تازہ ہو جانا. انگلش ہاؤس اکیڈمی کے بندے جب روڈ پر چلتے ہیں تو اللہ کو خوشی ہونا کہ یہ بندے جا رہے ہیں, دیکھیے یہ تربیت لے کر جا رہے ہیں, یہ 1 مہینے کی ٹریننگ لے کر جا رہے ہیں, اور آنے والے مہینے میں رمضان ہے. زندگی کا بہترین رمضان گزاریں. دعا کریں آپ لوگ انشاءاللہ اپنے زندگی کا بہترین رمضان گزاریں. اور رمضان جس کو ملتا ہے اور اس کی مغفرت اگر نہیں ہوتی ہے تو پھر جبریل علیہ السلام نے ایسی دعا دی, دیکھے کہ برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان پالے ہوئے اور اس کی مغفرت نہ ہو. رب پر قربان سب, کتنے بھی گناہ کر لیں پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیار ہے معاف کرنے کے لیے کہ بندہ تو ہاتھ تو اٹھا, معافی تو مانگ, دل سے ایک دفعہ اللہ سے انٹریکٹ کریں. آپ دعا نہ مانگیں, آپ صرف بیٹھ جائیں کمرے میں لائٹ بند کر کے اور بات کرنا شروع کریں اللہ سے. عشاء سے لے کے فجر تک, نہ عشاء پڑھی نہ فجر پڑھی, لیکن عشاء سے فجر تک نہ جانے کتنے نوجوان بچے بچیاں عشق بازی کے نام پر چیٹنگ کیے ہیں. کیا کبھی 5 منٹ اللہ سے آپ نے چیٹنگ کی ہے؟ کبھی بیٹھ کر اللہ سے آپ نے آواز لگائی ہے؟ کبھی انٹریکٹ کر کے دیکھو. آپ بیکار لوگوں سے بہت چیٹنگ کر چکے ہیں اپنے لائف میں. اپنے پرابلمز اللہ کو سناؤ, اپنے ڈریمز اللہ کو سناؤ, اللہ کو کنڈیشنز دو. یا اللہ زندگی تو نے دی, کامیابی تو نے دینا ہے. یا اللہ اسکول تو نے بھیجا ہے, عقل بھی تو نے دینا, علم بھی تو نے دینا. ورنہ کئی لوگ اسکول جا کر بھی بگڑے ہوئے ہیں, اسکول میں بھی علم نہیں ملا. اللہ سے مانگنے والے بنے. اگر آپ سے گناہ نہیں ہوتے ہیں تو سمجھنا کہ آپ کے والدین کی دعائیں آپ کے ساتھ چل رہی ہے اور اللہ آپ سے راضی ہے. ہر نوجوان بچے میں جوش ہوتا ہے, گرم خون ہوتا ہے. سب لوگ کچھ نہ کچھ غلط کرنا چاہتے ہیں, لیکن کوئی نوجوان اپنے نفس کو کچلتا ہے اور گناہ سے بچتا ہے. صاف اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے, اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے, اپنے والدین کی دعائیں اس کے ساتھ چل رہی ہیں, اساتذہ کی دعائیں اس کے ساتھ چل رہی ہے. آج ٹیچر سے نفرت کرتے ہیں بچے, ٹیچر سے دور ہو جا رہے ہیں. نوجوان بچوں, ٹیچر سے اگر دور ہو جاؤ گے احمق ہو جاؤ گے, کہیں کے نہیں رہو گے, نکمے ہو جاؤ گے, بھیکاری بن جاؤ گے, کوئی پوچھنے والے نہیں رہیں گے. ٹیچرز کی ریسپیکٹ کریں, سکلز کے پیچھے جائیں. میں آپ کو بس کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں, کسی کو رلانا میرا مقصد نہیں ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام گناہوں سے آپ کی حفاظت فرمائے. پورے عالم کے لیے اللہ نے یہ دیا ہے, کیونکہ اللہ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی دوزخ میں جائیں, کوئی جہنم میں جلتے رہیں. اللہ بے پناہ چاہتا ہے, اور اپنی چاہت کو بتانے کے لیے کیا مثال لے رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ اللہ مثال لے رہا ہے کہ تیری ماں تجھے جتنا چاہتی ہے نا, اس سے 70 گنا زیادہ میں چاہتا ہوں. تو اللہ مثال بھی لے رہا ہے, تو کس کی مثال لے رہا ہے؟ تیری گرل فرینڈ کر کے نہیں بول رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے تیری ماں تجھے جتنا چاہتی ہے, کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کتنا درد سہ کر ماں نے جنا ہے تجھے, اور کتنے مشکلوں سے تجھے ماں نے تجھے بڑا کیا ہے. آج ذرا تھوڑا سا آپ میں دم کیا آ گیا, دوڑنا کیا سیکھ گئے ہو, آپ سائیکل چلانا کیا سیکھ گئے ہو, جم جا کر تھوڑا وزن اٹھانا کیا سیکھ گئے ہو. آپ باپ والد کے ہی سینے پہ چڑھ رہے ہو, والد کو ہی رلانے والے بن گئے ہو, ماں کو رلانے والے بن گئے ہو. 12 سال عمر نہیں ہے, ایک ڈبی سگریٹ پی رہے ہیں بچے. 7 سٹینڈرڈ کے بچوں کو سگریٹ پیتے ہوئے دیکھ رہا ہوں میں. 8 سٹینڈرڈ کے بچوں کو ڈرگز میں ملوث ہوتے ہوئے دیکھی میری آنکھوں نے. درد ہوتا ہے, زندگی پوری تباہ کرتے ہیں. اور ایسے جو بچے سگریٹ, شراب, ڈرگز میں ملوث ہے, وہ بیچارے شادی کرتے ہیں. ایک معصوم بچی بڑے خواب لے کر آتی ہے کہ میرا ہسبینڈ ایسا ہوگا, مجھے ایسی خوشی دے گا,
मुझे ऐसी ज़िंदगी देगा। उस बेचारी को क्या मालूम ये रोज़ 2-2 डब्बी सिगरेट पीता है और रोज़ ड्रग्स लेता है, शराब पीता है। और ये जो रोज़ाना ड्रग्स, रोज़ाना सिगरेट, रोज़ाना शराब पीकर आप शादी करते हो और बच्चे पैदा करते हो और बीमार बच्चे पैदा होते हैं। बाद में बच्चों में, लंग्स में बच्चों में प्रॉब्लम्स पाए जाते हैं और अपाहिज बच्चे आप पैदा कर रहे हो और बच्चों को आप तकलीफ़ दे रहे हो। वो बच्चा पैदा भी होता है तो कमज़ोर पैदा होता है, उसके सीने में दर्द, उसके लंग्स में इन्फेक्शन, वो सांस लेने में शिकायत। ये क्यों? ये जेनेटिक्स है कि वालिद में वो तमाम बीमारियां सीने में दफन है, वो चीज़ मुंतकिल होती है बच्चों में और कैसे आने वाली नस्ल को तबाह कर रहे हैं। आप याद रखें, आपके वालिदैन ने आप पर जितना पैसा खर्चा है, आज रात आप कसम खाइए उससे 1000 गुना ज़्यादा आप अपने वालिदैन पर खर्चेंगे इंशाअल्लाह। उन्हें हज कराकर, उन्हें उम्रा कराकर, उनके हयात में उनके नाम पर मस्जिदें बनाकर, उनके हयात में यतीम खाने बनाकर, उनकी हयात में स्कूल्स बनाकर, उनकी हयात में उनके नाम के लाइब्रेरीज़ मोहल्लों में बनाकर आपको खुश करना है अपने वालिदैन को। लेकिन 12 साल में ये ख्वाब कहाँ होते हैं? करोड़ों में एक के होते हैं जिसका नाम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। इसी उम्र में घर में लाइब्रेरी सेटअप की थी आपने। आपके घर में क्या लाइब्रेरी है? शिवना के नौजवान या 12 साल 15 साल के बच्चों से मैं सवाल करता हूँ, कॉलेज के बच्चों से मैं सवाल करता हूँ कि आपके घर में किताबें हैं? वो स्कूल के किताबें नहीं कह रहा हूँ मैं, वो तो लाजिम सबके यहाँ होती हैं। हिस्ट्री की किताबें हैं। मैं हज़रत मौलाना हुज़ैफ़ा बस्तानवी साहब से इन दिनों बहुत ट्रैवल कर रहा हूँ। मुझे एक दफ़ा बताए थे जब आपकी उम्र 12 साल थी तो आप इंडिया की सारी हिस्ट्री पढ़ चुके थे। एक गलती की है, IAS का एग्ज़ाम नहीं लिखे आप। वो लिखते हैं तो आज एक आलिम दीन, एक IAS ऑफिसर भी होता है। 12 साल में आपने इंडिया की पूरी हिस्ट्री पढ़े। मैं कार में न जाने ये स्टेट से वो स्टेट, एक जगह से दूसरी जगह कितना ट्रैवल किया हूँ और ये हमेशा पढ़ते हुए नज़र आए मुझे, हमेशा मुताला करते हुए नज़र आए। हमेशा किताबों में इतने किताबें लेके आते हैं। कभी सफ़र में जाते हैं तो सफ़र में तो लोग थके हुए रहते हैं, सोना पसंद करते हैं। वो कच्ची रोडों पर एक नौजवान आलिम के हाथ में किताब है तो सीने से दर्द नहीं तो क्या निकलेगा? ये दर्द आप लोग के सीने में भी होना बेहद ज़रूरी है। फ़िक्र होना है। जो मैंने आपको बातें बताई ना कि मुझे टीचर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंस्पेक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, कसम खुदा की बहुत छोटी सोच है। आप सिर्फ आपके लिए सोच रहे हो। याद रखें शिवना के नौजवान बच्चों, जिस दिन आप आवाम की फिक्र करेंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला बेपनाह मदद करना शुरू कर देगा आपकी। आप सोचेंगे कि मुझे इंजीनियर बनना है तो छोटी हेल्प आएगी अल्लाह से। क्यों? आपकी नीयत छोटी है। जैसी आपकी नीयत होती है अल्लाह सुब्हानहू तआला वैसे फैसले फरमाता है। इस उम्र में, कच्ची जवानी में अगर कोई नौजवान बच्चा ये सोचता है, दर्द है कि मेरे मोहल्ले में कितनी बेवा औरतें हैं, मैं अगर कामयाब हो जाऊंगा एक दिन तो मेरे मोहल्ले क्या, मेरे पूरे गांव के बेवा औरतों को मैं 5-5 हज़ार रुपये पेंशन दूंगा, कसम खुदा की। उसी पल से अल्लाह की प्रोग्रामिंग शुरू हो जाएगी आपको बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनाने की। आपको ऐसे करोड़ों रुपयों से नवाजेगा अल्लाह सुब्हानहू तआला, क्योंकि अल्लाह को पता है कि ये बंदे में ये कम सिन उम्र में इसने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। वो फैसला जिनके पास हज़ारों करोड़ों रखकर अय्याशी में गुजार रहे, इसके जेब में 1 रुपया नहीं है और इतनी बड़ी सोच रखता है ये कि पूरे गांव के, हालांकि ये मेरी जिम्मेदारी है, ये अल्लाह की जिम्मेदारी है कि अल्लाह रिस्क देने वाला है, राज़िक है, लेकिन ये बंदा जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो रहा है तो अल्लाह के आसमानों में प्रोग्रामिंग चालू हो जाती है। अल्लाह ऐसे बेहतरीन असातिज़ा से आपको मिलाता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे अच्छे लोगों से आपको मिलाएगा तो फिर आप एक घर चलाने वाले नहीं बनेंगे, सिर्फ अपने वालिदैन को आप खुश करने वाले नहीं बनेंगे, आप अपने मोहल्ले के परेशान लोगों को खुश करने वाले बनेंगे इंशाअल्लाह। आप लोग बड़ा सोचने के लिए पैदा हुए हैं, बड़ा काम करने के लिए पैदा हुए हैं। आप लोग सिर्फ एक जॉब हासिल करने के लिए इस दुनिया में नहीं आए। इस दुनिया में आप लोग रेवोल्यूशन दिखाने के लिए आए हैं। और रेवोल्यूशन याद रखें,
कुर्बानियों से आता है, मेहनत से आता है और अच्छे काम, अच्छी सोच रखने से आता है। और यहाँ आज तमाम बच्चे ऐसे मुलविस है फ़ोन में, ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं गोया कोई अल्लाह को जवाब ही नहीं देना है आपने। और बिलखुसूस हमारे कम्युनिटी के बच्चे, ओल्ड सिटीज़ में आप जाएं, आप देखें, हर ओल्ड सिटी, हर शहर के ओल्ड सिटी जाएं, आप मुताला करें, देखें नौजवान बच्चों की ज़ुबान क्या है, वो ज़ुबान से क्या कलाम करते हैं। इतने गाली गलोज उनकी ज़ुबान पर, इतने गंदे अल्फाज उनकी ज़ुबान पर। मैं ताजुब करता हूँ कि ये गंदे अल्फाज आपके ज़ुबान पर कैसे आते हैं। मैं पूरी ज़िंदगी में मेरे अब्बा हुजूर को एक दफ़ा भी गाली देते हुए नहीं सुना। मेरे दादा एक दफ़ा भी गाली दें कभी याद नहीं आ रहा है मुझे। मेरे अब्बा हुजूर के 2 बड़े भाई थे, ताया अब्बू, वो दोनों कभी एक दफ़ा गाली, उल्लू के पट्टे, बस ये बोलते थे गुस्से में, बदमाश, बस ये सुना। कोई गाली उनके मुंह से मैंने नहीं सुना। कभी कभार मैंने बचपन में दिया होगा, लेकिन मेरे कानों ने कभी उनके मुंह से गाली नहीं सुनी है। तो वो चीज़ें मुझ में आई है, कितना भी गुस्सा आ जाए मेरी ज़ुबान पर गाली नहीं निकलती है। वो गाली इसलिए नहीं निकलती है क्योंकि मैंने अपने आप को एक मैसेज दिया है, और मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने आप से वो मैसेज दें और बहुत गौर से सुनें। मैं हर प्लेटफॉर्म से ये बात रखता हूँ और आपके लिए भी ये मैं बात रखना चाहता हूँ। जितने लोग बैठे हैं यहाँ पर, जितने बच्चे, जितने वालिदैन और जितने इंडिविजुअल्स मुझे सुन रहे हैं, बहुत गौर से सुने आप लोग। एक प्लेट है और प्लेट में हैदराबाद की बड़ी लज्जतदार बिरयानी है और आप बड़े भूखे हैं, और बड़ी बेहतरीन नवाबों की बिरयानी है, और कुत्ता आया और पेशाब कर दिया उस बिरयानी पर। तो क्या आपका मन करेगा कि आप बिरयानी खाएं? हाँ जी, बिल्कुल भी नहीं करेगा। आप लोग से सवाल करता हूं, क्या आप वो बिरयानी खाएंगे कि कुत्ते ने पेशाब पखाना कर दिया? खाएंगे आप? उसको क्या करेंगे? उसको फेंक देंगे, कूड़े में डाल देंगे उसको। तो मानो कि ऐसी प्लेट ये स्टेज पर रखी है, बिरयानी है, कुत्ता आया, पेशाब पखाना किया और बिरयानी ले आकर मैंने कूड़े में फेंक दिया, और प्लेट वहाँ पर रखा, खाली प्लेट है। फिर कुत्ता आया, खाली प्लेट में पखाना किया और वो पखाने को मैंने फेंक दिया। गर्म पानी से आपके सामने बर्तन धोया, फिर उसमें बिरयानी डालकर आपको पेश किया। क्या आपका दिल मानेगा कि उस प्लेट में बिरयानी खाए? हालांकि मैंने गर्म पानी, वॉशिंग पाउडर, निरमा से धोया। क्या दिल करेगा कि आप खाएं? मेरा तो दिल नहीं करेगा, क्योंकि मैंने उस प्लेट में कुत्ते को पखाना करते हुए देखा है। भले आप उसको धो दें, उस पर फिर से बिरयानी डालें, मन नहीं करेगा कि मैं बिरयानी खाऊं, भूखा मर जाऊं, लेकिन वो चीज़ छूऊंगा नहीं। तो एक दफ़ा अपने ज़ुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया। इस ज़ुबान से कई दफ़ा आपने दरूद पढ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस ज़ुबान से अल्लाह, इतना प्यारा नाम लिया आपने। इस ज़ुबान से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने कहा। इसी ज़ुबान पर गाली को बिठा सकते हो लाकर? आप कैसे बिठा सकते हो? क्या ये ज़ेब देता है? एक ज़ुबान पर दरूद और उसी ज़ुबान पर गाली भी हो, ये मैच हो सकता है? बताएं प्लीज़ आप। सवाल ही नहीं है। एक दफ़ा आपने दरूद पढ़ लिया, एक दफ़ा आपने कोई कुरान की आयत पढ़ ली। आप लोग से मैं सवाल करता हूँ, जितने ख़वातीन यहाँ पर हैं, जितने नौजवान यहाँ पर हैं, जितने पेरेंट्स यहाँ पर हैं, आप सबसे एक मेरा सवाल, क्या आपने कभी अपने ज़िंदगी में एक दफ़ा कोई भी कुरान की आयत पढ़ी है? यस और नो? मुझे आवाज़ नहीं आ रही है। क्या कभी आपने अपनी ज़िंदगी में कुरान की एक आयत पढ़ी है? अगर पढ़ी है तो हाथ उठाकर मुझे बताएं, क्या आपने पढ़ा है कभी? उस ज़ुबान से क्या गाली कभी दे सकते हैं हम? जवाब दें। क्या गीबत कर सकते हैं?
आज हम गीबत करते हैं कि नहीं करते हैं, गाली देते हैं कि नहीं देते हैं, कितनी दफ़ा हम गाली देते हैं। चलो आओ खस्म खाते हैं। आज से इंशाअल्लाह मैं 2 वादे आप लोग से चाहता हूं, क्या तैयार हैं आप लोग करने के लिए? वादा करेंगे आप लोग? आप जितने हाथों में स्मार्टफोन हैं वो अपना फ़ोन उठाएं, लाइट ऑन करें और आज वादा करें कि इस ज़ुबान से मैं कभी गाली नहीं दूंगा। जितने फ़ोन्स हैं अपने टॉर्च ऑन करें सब लोग। मैं एक 30 सेकंड आपको वक्त दे रहा हूँ, थोड़ी जुर्रत करें, थोड़ी मेहनत करें, अपने जेब में हाथ डालें। माशाल्लाह देखें, काश ऐसे आपके जेब से कुरान भी निकलते हैं, लेकिन सारे ये लाइटें चमक रही है, ये चमकते फ़ोन इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो आसमान से देख रहा है। आप लोग ऐसे ही हाथ ऊपर रखें और ये चमकती लाइट आपकी हाथ में हो, इसे गवाह बनाएं और मेरे साथ पढ़ें। सब लोग वादा करें कि आज से मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। चिल्ला कर बोले सब लोग, आज से मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, आज से मैं कभी गीबत नहीं करूँगा, आज से मैं कभी वालिदैन को सताऊँगा नहीं। चले अल्लाह ये दुआएं कबूल करे। आप लोग बैठे माशाअल्लाह, सबके हाथों में फ़ोन है। चलो अब जेब में हाथ डालो, डिक्शनरीज निकालो। निकाल पाएंगे आप लोग? आज नहीं है, हाथों में सबके फ़ोन हैं, लेकिन किताबें नहीं होती हैं। बिना फ़ोन हम जी भी नहीं सकते हैं। मैं कोई फ़ोन का दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन याद रखें फ़ोन को स्मार्टली यूज़ करना शुरू करें। आप लोग स्मार्टली यूज़ करेंगे इंशाअल्लाह तो आप लोग कामयाब होंगे, वरना आने वाले 10 साल 20 साल के बाद ऐसे परेशान ज़िंदगी आप गुजारने वाले हैं जो आपको ज़रा भी आइडिया नहीं होगा। मैंने देखा 10-20 साल पहले वालिदैन के पैसों पर नाज किया करते थे बहुत से नौजवान बच्चे, लेकिन आज इतना परेशान होकर उनकी ज़िंदगी गुजर रही है। तो मैं आप लोग से बस इल्तिजा करता हूँ कि हमारी कामयाबी एक हाथ में कुरान और एक हाथ में स्कूल का बैग। आपको कोई भी अगर बंदा ये पूछें कि मुनव्वर जमा कोई बंदा आया शिवना यहाँ क्या मैसेज देकर गया, तो आपने क्या कहना है कि आज से एक हाथ में कुरान, एक हाथ में स्कूल की किताबें, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये हाथ में हमारे अगर होंगे तो हम कल के डॉक्टर APJ कलाम होंगे, कल के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब होंगे इंशाअल्लाह। और फिर 2 वादे जो आपने किए, बल्कि 3 वादे। एक, हम लोग कभी सिगरेट, शराब, ड्रग्स नहीं लेंगे इंशाअल्लाह, आप लोगों ने वादा किया है। दूसरा वादा, इस ज़ुबान से हम कभी गीबत और झूठ नहीं बोलेंगे इंशाअल्लाह। और तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट, आप कभी वालिदैन को सताएंगे नहीं। वालिदैन को अगर आप सताएंगे, आप 1000 करोड़ भी अगर कमा लें, अल्लाह के नज़दीक वो कचरा है। 1000 करोड़ कुछ नहीं है, दुनिया के लिए कामयाबी है, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए वो 1000 करोड़ कागज़ के टुकड़े हैं और कुछ नहीं है। और अल्लाह नाराज़ होता है। आपके वालिदैन अगर नाराज़ हैं तो अल्लाह आपसे नाराज़ है, वालिदैन खुश है तो अल्लाह आपसे खुश है। आज घर जाकर अपने वालिदैन से एक सवाल करें, क्या अम्मी आप मुझसे खुश हैं? अगर वो कहती हैं हाँ बेटा मैं तेरे से बहुत खुश हूँ, तो समझ जाए कि रब्बे कायनात अल्लाह आपसे खुश है। अगर आपकी अम्मी ने गलती से कह दिया नहीं बेटा तू मुझे बहुत सताता है, मेरी सुनता नहीं है, तो समझ जाएं कि आप खसारे में हैं। इमीडिएट पैरों पर गिर जाएं, माफ़ी तलब करें, उनकी दुआएं लें और एक नई ज़िंदगी जीने के लिए ठान लें। मैं इस प्लेटफॉर्म से दुआ करता हूँ कि यहाँ से साइंटिस्ट, यहाँ से डॉक्टर्स, यहाँ से हुफ़ाज़ इकराम, यहाँ से उलमा, यहाँ से मुफ्तियान, यहाँ से ब्यूरोक्रेट्स, जजेस बने। और मैं सलाम करता हूँ मकतब मोहम्मदिया को कि ये 250 बच्चों पर ज़बरदस्त यहाँ काम कर रहा है माशाअल्लाह। और इस टीचर के जानिब से आपके मकादिब को मैं इंशाअल्लाह 1 लाख रुपए डोनेशन देता हूँ। वो आप यहाँ के बच्चों में कुरान पढ़ाने में वो पैसा इस्तेमाल करें। और मैं खुश नसीब समझता हूँ आप
اس چھوٹے سے ڈونیشن کو ایکسیپٹ کریں اور وہ پیسہ قرآن خریدنے میں، قرآن پڑھانے میں استعمال کریں تو میری بھی بخشش ہو سکتی ہے۔ میں حضرت مولانا حذیفہ وستانوی صاحب کا، مولانا محسن صاحب کا اور یہ پیارے نوجوان بچے اور والدین، خواتین اور جو 10 کلومیٹر سے جو جوش والے جو نوجوان تھے ان کو اس بندے کا سلام۔ انشاءاللہ اللہ میرے مقدر میں پھر یہاں آنا ہو تو پھر کبھی آؤں گا اور انشاءاللہ اور بھی گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم، تھینک یو سو ویری مچ۔